Hello everyone, welcome to this new session on logical reasoning. My name is Ashish and today I'm going to discuss arrangement and groupings, which is an almost certain topic to be asked in your competitive exam. चाहे वो MBA एग्ज़ाम्स हों स्पेशली लाइक IIFT एंड मैट स्नैप टेस्ट या फिर एग्ज़ाम्स लाइक बैंक PO SSC CGL etc. This topic is very much likely to be asked in every exam. So today we are going to solve some of the questions related to arrangement and groupings. So let's start with solving the questions. आज के सेशन में we will start with slightly easier questions. ज़्यादा भी easy नहीं होंगे but we will move to a increased difficulty level in the upcoming sessions. So this is the first set of questions on your screen. It says that the director of an institute wants to distribute teaching assignments of HRM, psychology, development studies, trade policy and finance to 5 of 6 nearly appointed faculty members. Then there are professors. Professor F does not want any assignment if Professor D gets one. Professor C desires either HRM or finance or no assignments. Professor B says that if Professor D gets either psychology or trade policy, then she must get the other one. And Professor E insists on an assignment if Professor A gets one. So there are certain professors, A, B, C, D, E, F मान लेते हैं हम उनको, and there are certain conditions given to you. तो ये groupings का question है, इसमें आपको conditions given होंगी. Or the way to solve such kind of question is that you need to eliminate the choices as per the given conditions in the question. So let's have a look at the questions. The question says which of the following is the valid faculty assignment combination if all the faculty preferences are considered. तो जो भी आपको given conditions थी question में वो सभी अगर आपको satisfy करानी हो तो कौन सा valid combination बनेगा. दूसरा क्वेश्चन है प्रोफेसर ए गेट्स HRM, प्रोफेसर सी गेट्स फाइनेंस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट कॉम्बिनेशन. सो अगेन आपको दोनों में करेक्ट या इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है एज पर द गिवन कंडीशंस इन द क्वेश्चन. तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एलिमिनेट करिएगा चॉइसेस को रादर देन ट्राई टू फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन. तो अब एक बार लिख लेते हैं कि क्या क्या हमें दिया हुआ है. तो पहले वो कहता है कि प्रोफेसर एफ डज नॉट वांट एनी असाइनमेंट इफ प्रोफेसर डी गेट्स वन ऑफ द 5. तो अगर डी को कुछ मिल जाएगा देन सो इफ डी गेट्स एन असाइनमेंट देन एफ वोंट गेट एनी असाइनमेंट. दैट इज फर्स्ट कंडीशन. प्रोफेसर सी डिजायर्स आइदर HRM और फाइनेंस और नो असाइनमेंट. तो सी को या तो HRM में मिलेगा या फाइनेंस में मिलेगा या फिर इसको कुछ नहीं मिलेगा. प्रोफेसर बी सेज इफ प्रोफेसर डी गेट्स आइदर साइकोलॉजी और ट्रेड पॉलिसी देन शी मस्ट गेट द अदर वन. तो डी की ओपिनियन ये है कि बी की ओपिनियन है कि इफ डी गेट्स आइदर साइकोलॉजी, सो इफ डी गेट्स आइदर psychology or trade policy then B should get the other one. यानी अगर इसको psychology मिला तो इसको trade policy मिलेगा और अगर D को trade policy मिला तो B को psychology मिलेगा. and Professor E insists on an assignment if Professor A gets one. तो अगर A को हमने कोई भी assignment दिया है, if A exists then E को भी हमें असाइनमेंट देना पड़ेगा. सो दीज आर द कंडीशंस गिवन. नाउ वील ट्राई टू एलिमिनेट द चॉइसेस जो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते. पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड फैकल्टी असाइनमेंट कॉम्बिनेशन इफ ऑल द फैकल्टी प्रेफरेंसेस आर कंसीडर्ड. सो दीज आर द 4 चॉइसेस. वील ट्राई टू एलिमिनेट द चॉइसेस विच डू नॉट सेटिस्फाई आवर गिवन कंडीशन. तो पहला ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखें तो प्रोफेसर सी को इन्होंने डेवलपमेंट स्टडीज दिया हुआ है. अगर कंडीशन देखें तो सी शुड गेट आइदर HRM और फाइनेंस और नथिंग. तो दिस ऑप्शन कैन नॉट बी द करेक्ट वन. यहाँ पे सी के पास HRM है तो दैट सेटिस्फाइज दैट कंडीशन. उसके अलावा यहाँ पे सी को ट्रेड पॉलिसी दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन में, सो दिस इज अगेन इनकरेक्ट.
और फोर्थ ऑप्शन में भी सी को ट्रेड पॉलिसी दिया गया, तो दिस इज अगेन इनकरेक्ट. सो द करेक्ट चॉइस बाय डिफॉल्ट बिकम्स ऑप्शन नंबर 2. So that is how you can solve these questions. Rather than finding the correct combination of faculty and the assignment, just eliminate the choices which violate even one condition. क्योंकि उसने कहा है कि all the conditions should be considered. दूसरा क्वेश्चन है, if Professor Acharya gets HRM and Chaudhary gets finance. So A gets HRM एंड सी गेट्स फाइनेंस. तो सी को HRM और फाइनेंस मिल सकता था, ये हमें कंडीशन में दिया गया था. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट फैकल्टी असाइनमेंट कॉम्बिनेशन. अब हमें बताना है विच इज नॉट करेक्ट, यानी इनमें से कौन सा डेफिनेटली गलत कॉम्बिनेशन है. तो प्रोफेसर डी डेवलपमेंट स्टडीज, बी ट्रेड पॉलिसी. इफ वी गो बैक टू द कंडीशन, डी और बी के बारे में हमें एक कंडीशन दी गई है. इफ डी गेट साइकोलॉजी और ट्रेड पॉलिसी देन बी शुड गेट द अदर वन. तो अगर डी को साइकोलॉजी और ट्रेड पॉलिसी मिलेगा, यहाँ पे तो डी को डेवलपमेंट स्टडीज मिला है, तो वो कंडीशन तो यहाँ लगेगी नहीं. फोर्थ ऑप्शन में भी डी और बी है, तो इफ डी गेट्स ट्रेड पॉलिसी देन बी शुड गेट द अदर वन, यानी साइकोलॉजी यहाँ पे मिलना चाहिए था, बट यहाँ पे डेवलपमेंट स्टडीज मिला है. सो क्लियरली दिस वायलेट्स द कंडीशन. फोर्थ ऑप्शन कंडीशन थी इफ डी गेट्स साइकोलॉजी और ट्रेड पॉलिसी देन बी शुड गेट द अदर वन, यानी अगर इसको साइकोलॉजी मिला है तो इसको ट्रेड पॉलिसी मिलेगा, इसको ट्रेड पॉलिसी मिला है तो इसको साइकोलॉजी मिलेगा. तो यहाँ पे डी को ट्रेड पॉलिसी मिला हुआ है, तो बी को यहाँ पे साइकोलॉजी मिलना चाहिए था, बट बी को इन्होंने लिखा हुआ है डेवलपमेंट स्टडीज, हेंस इट इज नॉट ट्रू. फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर. पहला ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पहले ऑप्शन में डी को साइकोलॉजी और ट्रेड पॉलिसी मिला ही नहीं था, तो वो आगे की कंडीशन सेटिस्फाई हम करेंगे ही नहीं, चेक ही नहीं करेंगे उसको. सो दैट इज वाई फोर्थ इज द राइट ऑप्शन, नॉट द फर्स्ट वन. लेट्स मूव टू द सेकेंड सेट ऑफ क्वेश्चंस. It says 5 of India's leading models are posing for a photograph promoting some initiative, but then Rakesh, the photographer, is having a tough time getting them to stand in a straight line. तो दैट मीन्स ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, हमें स्ट्रेट लाइन में कुछ मॉडल्स को अरेंज करना है. अब आगे कुछ कंडीशंस दी गई. बिकॉज ऐश्वर्या रिफ्यूज्ड टू स्टैंड नेक्स्ट टू सुष्मिता बिकॉज सुष्मिता हैड सेड समथिंग अबाउट हर इन ए लीडिंग गॉसिप मैगजीन. Rachel and Anu want to stand together because they are such good friends. Manpreet, on the other end, cannot get along with Rachel because there is some talk about Rachel scheming to get a contract already awarded to Manpreet. Anu believes her friendly astrologer, who has asked to stand at the extreme right for all the group photographs. Finally, Rakesh managed to pacify the girls and got a beautiful picture of 5 beautiful girls smiling beautifully in a beautiful straight line. कितना beautiful question है. Promoting world peace. So this is a very nice word, pacify. Someone in the comment box please tell me the meaning of pacify. ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है vocabulary में. However, our objective is to solve the questions. There are 3 questions. So first pause the video and try to solve these 3 questions, then come back to see the solution. So हमें 3 question के आंसर देने. If Aishwarya is standing to the extreme left, which girl is standing in the middle? If Aishwarya stands to the extreme left, which girl is standing second from the left? If Anu's astrologer tells her to stand second from left and Aishwarya decides to stand second from right, then who is the girl standing on the extreme right? So let's go back to the main question and try to make the arrangement. तो पहली कंडीशन थी ऐश्वर्या रिफ्यूज टू स्टैंड नेक्स्ट टू सुष्मिता. तो ऐश्वर्या एंड सुष्मिता साथ साथ नहीं आएंगे, दैट इज वन थिंग. रेचल एंड अनु वांट टू स्टैंड टुगेदर, तो रेचल एंड अनु विल बी टुगेदर. मनप्रीत ऑन द अदर एंड कैन नॉट गेट अलॉन्ग विथ रेचल, तो मनप्रीत एंड रेचल भी साथ साथ नहीं आएंगे. तो फर्स्ट लेफ्ट कॉलम में हमने वो लिखे हैं जो साथ साथ नहीं आएंगे, राइट कॉलम में लिखे हैं जो एक साथ आएंगे. अनु बिलीव्स हर फ्रेंडली एस्ट्रोलॉजर हु हैज आस्क्ड हर टू स्टैंड एट द एक्सट्रीम राइट. तो देयर आर 5 पीपल
So 1 2 3 4 and 5. तो एक्सट्रीम राइट में आएगी अनु, दैट इज गिवन. फाइनली राकेश मैनेज टू पैसिफाई द गर्ल्स एंड गॉट द अरेंजमेंट. सो ये हमें कंडीशन दी गई है. तो अगर अनु एक्सट्रीम राइट में आएगा और अनु और रेचल साथ साथ आएंगे, सो दैट मीन्स यहाँ पे रेचल आ जाएगी. अब पहला क्वेश्चन देखते हैं. पहला क्वेश्चन है, ऐश्वर्या स्टैंडिंग टू द एक्सट्रीम लेफ्ट देन विच गर्ल इज स्टैंडिंग इन द मिडल. तो अगर एक्सट्रीम लेफ्ट में यानी दिस इज ऐश्वर्या, तो यहाँ पे बीच वाली पोजीशन पे कौन है, दैट इज द क्वेश्चन. अब ऐश्वर्या के बराबर में सुष्मिता नहीं आ सकती, सो दिस प्लेस कैन नॉट बी टेकन बाय सुष्मिता. तो सुष्मिता हैज टू बी दिस, क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा उसके पास. तो द करेक्ट आंसर हैज टू बी सुष्मिता, दैट इज बी ऑप्शन. सेकेंड क्वेश्चन, इफ ऐश्वर्या स्टैंड्स टू द एक्सट्रीम लेफ्ट, अगेन द सेम कॉम्बिनेशन. विच इज द गर्ल हु स्टैंड सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट. तो लेफ्ट से सेकेंड यानी इस पोजीशन पे. तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचा हमारे लिए, मनप्रीत का. सो मनप्रीत हैज टू बी द आंसर, डी ऑप्शन. थर्ड क्वेश्चन से, अनुज एस्ट्रोलॉजर टेल्स हर टू स्टैंड सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट. अब अनु के एस्ट्रोलॉजर ने उसको बोल दिया कि आप सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट खड़े हो जाइए. 1 2 3 4 एंड 5. तो सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट यानी दैट विल बी अनु. अनु के साथ रेचल होगी, या तो यहाँ पे आएगी यहाँ पे आएगी, क्योंकि उसके बराबर में हो सकती है लेफ्ट और राइट, हमें नहीं पता. एंड ऐश्वर्या डिसाइड्स टू स्टैंड सेकेंड फ्रॉम द राइट. राइट से सेकेंड पे यहाँ पे ऐश्वर्या आ जाएगी, और ऐश्वर्या के बराबर में सुष्मिता नहीं आ सकती. सो दिस कैन नॉट बी सुष्मिता, दिस कैन नॉट बी सुष्मिता. सो दिस हैज टू बी सुष्मिता. एक ही ऑप्शन बचा उसके लिए. और अनु के बराबर में रेचल आएगी, दैट मीन्स दिस हैज टू बी रेचल. तो जो एक जगह बची वहाँ पे मनप्रीत आ जाएगी. अब क्वेश्चन कहता है, देन हु इज द गर्ल स्टैंडिंग ऑन द एक्सट्रीम राइट. तो एक्सट्रीम राइट पे है हमारे पास मनप्रीत. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. सो अरेंजमेंट एंड ग्रुपिंग से क्वेश्चन में आपको यही करना है कि वॉट एवर कंडीशंस आर गिवन इन द क्वेश्चन, लाइन बाय लाइन उनको पढ़िए एंड ट्राई टू मेक एन अरेंजमेंट. और ग्रुपिंग्स के क्वेश्चन में आपको ये करना है कि जो भी कंडीशन दी गई है उनके बेसिस पे ऑप्शंस एलिमिनेट करिए. बाय यूजिंग दीज मेथड्स it will be very easy for you to solve the questions. If you have any doubt regarding these topics or any other general query about your exams, then you can write to me on this email ID. And if you have not subscribed to the channel yet, please subscribe so that regular updates आपको मिलते रहेंगे. That brings us to the end of this session. In the upcoming session, as I said, we will discuss some more difficult questions of arrangement and groupings and other topics as well. Till then, keep learning.